Welcome to Home Classes, 12th English J.K. Bose, Poem, Unit 15, When the Autumn Came by Faiz Ahmed Faiz. Faiz Ahmed Faiz, he is known as revolutionary Urdu lyric poet. उसको उर्दू लिरिक शायर कहा जाता है. He has been widely translated into English and other languages. उसकी नज़में उर्दू और इंग्लिश या दूसरी ज़बान में ट्रांसलेट की गई है. Born in Sialkot, Pakistan, he lectured at Amritsar. पाकिस्तान सियालकोट में पैदा हुआ और अमृतसर में लेक्चर दिया करता था. He participated in Indian labor movement. उसने इंडियन लेबर मूवमेंट में भी हिस्सा लिया. Later after partition, जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान अलग हुआ, he worked as an editor of the Pakistan Times. उसके बाद उसने पाकिस्तान टाइम्स में एडिटिंग का काम किया. His well-known poetic volume includes limitation. उसका जो अच्छा poetic volume है उसमें कुछ कमियां हैं. And fingers of praise, और उस पे उंगलियां भी उठती हैं. बहरहाल When Autumn Came by Faiz Ahmed Faiz जो पढ़ने हम जा रहे हैं, ये भी उर्दू एक नज़म है जिसको ट्रांसलेट किया गया है और ट्रांसलेट करने वाले हैं नियोमी लेजर. इसको ट्रांसलेट किया है. आइए हम ओरिजिनल टेक्स्ट की तरफ देखते हैं. कहता है, This is the way that autumn came to the trees. It stripped them down to the skin, left their ebony bodies naked. It shook out their hearts, and the yellow leaves scattered them over the ground. Anyone could trample them out of shape, undisturbed by a single bound of protest. In these lines, the poet shows Autumn making its appearance as harsh, aggressive persons who uses violence and force to strip the leaves off the branches of trees. The leaves of the trees turn from green to yellow without onset of autumn, and one fall to the ground below. That is why this season is also referred to as fall in America. In these lines, the poet compares the bare trunk of trees to the black slaves of Africa, who have had a long tragic history of oppressions and slavery, being enslaved for the centuries by various civilizations like Egypt, Greeks, Roman, Arabs, etc., till early half of the previous century by the European colonists and the white Americans. Ebony is a type of tree unique to Africa, which is of a rich, intense black color. The yellowing leaves of the trees are like the hearts of these black slaves being shaken and tortured by the slave drivers and owners as they are led off, bound and chained, mute and silent in their sufferings. Thus Autumn is depicted as a cruel, heartless oppressor bringing suffer or bringing suffer and violence with him. इन लाइनों में शायर मौसम खज़ां को एक सख्त जारहाना शख्स की तरह जाहिर करता है जो दरख्तों की शाखों से पत्तों को उतारने के लिए शिद्दत और ताकत का इस्तेमाल करता है. दरख्तों के पत्ते मौसम खज़ां के आगाज के साथ ही सब्ज से पीले रंग के हो जाते हैं और एक एक करके नीचे की जमीन पर गिर पड़ते हैं. इस वजह से मौसम को अमेरिका में ज़वाल भी कहा जाता है. इसी वजह से इस मौसम को अमेरिका में ज़वाल भी कहा जाता है. इन सुतूर में या इन लाइनों में शायर दरख्तों की नंगी तनों का
मुवाजना अफ्रीका के स्याह फार्म गुलामों से करता है जिनकी जुल्म और गुलामी की एक तवील अलमनाक तारीख रही है। सदियों से मुख्तलिफ तहजीबों जैसे मिस्रों, यूनानियों, रोमियों, अरबों वगैरह के जरिए गुलामी की हैसियत से यूरोपी नव-आबादियात और सफ़ेद फार्म अमरीकियों के जरिए पिछली सदी के निस्फ तक अबाउनी एक दरख्त की एक किस्म है जो अफ्रीका के लिए अनोखा है, जो एक गहरा स्याह रंग है। दरख्तों के जर्द पत्ते उनके काले गुलामों के दिलों की तरह होते हैं, जिन्हें गुलाम ड्राइवरों और मालिकान ने हिलाया और तशद्दुद का निशाना बनाया, जैसे कि उनकी तकलीफ में बुलंद और जड़े हुए खोखा और खोंगा और खामोश बनाया। इस तरह खजा को एक जुल्माना या जालिमाना बैदिल जालिम के साथ दिखाया गया है, जो इसके साथ तकलीफ और शिद्दत लाता है। यहाँ पे ट्रैम्पल का मतलब होता है रोंदना और मून का मतलब होता है घराना। रोंदने का मतलब होता है किसी पाँव के तले कुचलना और घराना का मतलब होता है दर्द की नरम आवाज। आगे बढ़ेंगे। Line 8 to 12 इन लाइन में क्या बोलता है? कहता है The birds that held dreams were exiled from their songs, each voice torn out of its throat. They dropped into the dust even before the hunter sprung his bow. As the day became cooler and shorter, many birds start their migration to warmer lands, and thus one can no longer hear the sweet song of these birds during the autumn months. However, the poet, continuing with the theme of violence and cruelty, painted a vivid, moving picture of a heartless person brutally ripening out the voices, the vocal cords of the birds from their throats so that the birds drop dead to the ground. Even though the birds had been exiled or separated from their songs, the person seems to perform his mindless act of cruelty, not giving them the chance or time to leave the land. इन स्टोर में या इन लाइनों में शायर कहता है कि जैसे जैसे दिन सर्द और छोटा हो जाता है, बहुत सारे परिंदे गर्म सरजमीनों की तरफ अपनी हिजरत का आगाज करते हैं और इस तरह कोई भी मौसम खजा के महीनों में इन परिंदों के मीठे गानों को नहीं सुन सकता है। ताहम शायर शिद्दत और जुल्म के मौजू को जारी रखते हुए एक सख्त या एक नुहसत शख्स की परिंदों की आवाज और आवाज की डरोनियों को अपने गले से बेदर्दी से चीरता हुआ एक मुतहरक और तस्वीर पेश करता है, ताकि परिंदे जमीन पर सर्दी से गिर पड़ते हैं और अगरचे परिंदों को जलावतन कर दिया गया होता है या इनके गानों से जुदा हो चुका होता है, लेकिन ऐसा लगता है कि वो शख्स इससे वकूफाना हरकत का मुजाहिरा करता है और ऐसे जमीन छोड़ने का मौका या वक्त नहीं देता। अब 13 to line 13 to 18
O God of May, have mercy, bless these withered bodies with the passion of your resurrection. Make their dead veins flow with blood again. Give some trees the gift of green again. Let one bird sing. Resurrection means to rise from the dead, in other words, to come back to life. In the given lines, the poet now appeals to the more merciful God or authority of month of May to infuse or inject the new life into the dried out, shrunken body of the birds and trees so that they too could come back to life. The seasons of the year symbolize the cycle of life and that of the regeneration of continuity. The month of April and May are the time of new growth, of renewal. खुदा के मई यहाँ पे जो कह रहा है यानी कि जो रिजरेक्शन का मतलब है वो है मुर्दों में से जी उठना, दूसरे अल्फाज में जिंदगी में वापस आना। लाइनों में बताया गया है कि शायर अब मेहरबान खुदा या अख्तियारात से अपील करता है कि वो परिंदों और दरख्तों की खस्ता हालत, सुकड़ी हुई लाशों में नई जिंदगी भर दे ताकि वो भी दोबारा जिंदा हो सकें। साल के मौसमी जिंदगी और मौत तख्लीक नव तसलसल के चक्र की अलामत है और अप्रैल और मई के महीने नई नशोनमा होती है और दोबारा से होती है। जब खजा आता है तो हमारे बढ़ने से ये वाज़ेह होता है, हमारे पढ़ने से ये वाज़ेह होता है कि मौसम खजा का मौसम शायर के लिए साल का एक उदास, मायूस कुन और अफसुर्दा होता है, वक़्त होता है और जो उसे एक मौसम के तौर पर देखता है जो दरख्तों और परिंदों जैसे फितरी चीज़ों का खात्मा और वो भी एक पुरतशद्दुद और ज़ालिमाना अंजाम लाता है। पतों के बहाने और परिंदों की गर्म सरगर्मियों में नकल मकानी को एक ज़ालिमाना शैतानी जुल्म के हाथों वक्त मौत की एक इंतहाई तारीख और तारीख के तस्वुर में पेश किया गया है। यहाँ तक कि वो एक मायूस कुन नोट को खत्म करता है और करीब करीब मई के खुदा से इल्तिजा करता है या मई में खुदा से इल्तिजा करता है कि वो कम अज कम एक दरख्त और एक परिंदे को नई जिंदगी दे। गोया कि उसे यकीन नहीं है कि उनकी दिल दरख्वास्त या दुआ का जवाब दिया जाएगा। इस तरह से हमारा जो है हमारी पोम यहाँ पे ख़त्म हो जाती है और हम आगे बढ़ेंगे इसकी ब्रीफ समरी पे क्योंकि काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है स्टूडेंट्स ब्रीफ समरी को जांचना। और आइए देखते हैं यहाँ पे ब्रीफ समरी में इसने क्या कहा है। From our reading of When Autumn Came, it seems obvious that the season of autumn is gloomy, dismal, depressing time of the year's
time of the year for the poet. He sees it as seasons that brings an end, that too a violent and a cruel end, to natural things like the trees and the birds, the shedding of leaves and migration of the birds to warmer lands are portrayed in a very bleak and a dark picture of untimely death at the hands of a brutal and vicious oppressor. He even ends on a pessimistic note, almost begging the god of May to give new life to at least one trees and one birds, as he is not certain his heartfelt prayer will be answered. हमारे पढ़ने से ऑटम कैम्प में ये दिखाई देता है कि सीजन ऑफ ऑटम या मौसम खज़ां एक तारीखी, एक नाउम्मीद, एक कम रोशन वाला जो है वो वक़्त होता है या गमगीन वक़्त होता है शायर के लिए। वो इसको ज़िंदगी के खात्मे का सीज़न कहता है, वायलेंट, क्रूल एंड, और यहाँ पे वो कहता है कि जो नेचुरल चीज़ें हैं और जो दरख्त हैं वो ख़त्म हो जाती हैं और पत्ते गिरते हैं, बर्ड माइग्रेशन करते हैं गर्म ज़मीनों की तरफ। इसको यहाँ पे बयान किया गया एक बेरंग, फीका सा और एक यानी कि एक अंधेरी तस्वीर के साथ जो हमें बोलती है कि कोई ऑप्रेसर या ब्रूटल ऑप्रेसर या ये जो है कोई सुप्रेसर क्या करता है कि अनटाइमली डेथ देता है और इस तरह से लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, खासकर नेचुरल थिंग्स जो है वैनिश्ड हो जाती है, डिसअपीयर्ड हो जाती है। तो एंड पे वो पेसिमिस्टिक नोट छोड़ता है जिसमें वो मे के खुदा से जो है वो इल्तिजा करता है, दरख्वास्त करता है, दुआ करता है, प्रार्थना करता है कि वो उसको तकरीबन एक बर्ड दे और एक दरख्त दे जिस पे वो सिंग कर सके, उसको नई जिंदगी दे, लेकिन उसको यकीन होता है कि उसकी दुआ नहीं सुनी जाएगी या उसके दुआ की जो है वो तलाफी नहीं की जाएगी। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस पे। यह है साबित क्वेश्चंस व्हेन ऑटम केम इसके। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, The autumn season is characterized by few things. What are they? यहाँ पे क्या कहता है? कहता है कि जो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, मौसम खज़ां के मौसम में कुछ चीज़ों की खुसूसियात होती है, वो क्या है? जैसे ripening of fruit, harvesting, falling of leaves from the trees, cooling of weathers are the distinct feature of the autumn season. तो क्या है इसमें? जैसे कि हमारे पास फलों का उगना, फलों का पकना, फसलों का काटना, दरख्तों से पत्ते गिरना, मौसम की ठंडक, ये मौसम खज़ां की अलग खुसूसियात हैं या फीचर्स हैं। अब कहता है दूसरा क्वेश्चन, Does the poet talks about all those characteristics? The poet doesn't talk about all those characteristics. He only talks about the falling of trees, falling of leaves from the trees. अब क्वेश्चन बोलता है ये यहाँ पे, क्या शायर इन तमाम खुसूसियात के बारे में बात करता है? तो शायर इन तमाम खुसूसियात के बारे में बात नहीं करता है, वो सिर्फ दरख्तों से पत्ते गिरने की बात करता है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास आगे 3 है, What is the impact of autumn on the trees? The autumn snatches the trees from their leaves and make them naked. क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, दरख्तों पर मौसम खज़ां का क्या असर होता है या पड़ता है? जब आप खज़ां के पत्ते से दरख्त छिनकर गिर जाते हैं और वो नंगा हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर
Question number 4. What happens to the birds when autumn came? मौसम खज़ां, जब मौसम खज़ां आता है तो परिंदों का क्या होता है या परिंदों को क्या होता है? ये कहता है कि birds are exiled from their own nests and deprived of their singing when autumn comes. ये कहता है कि परिंदे अपने ही घोंसलों से जलावतन होते हैं और खज़ां आने पर उनकी गुलूकारी को भी जो है छीन लिया जाता है या उनको गुलूकारी से महरूम हो जाना पड़ता है। Question number 5, and this is the last one. Why does the poet invoke the god of May? यानी कि शायर मे के खुदा से क्यों दुआ करता है? इन्वोक का मतलब होता है दुआ करना। कहता है कि the poet invokes the god of May so that the naked trees and exiled birds will bloom again with their pristine glory. अब क्या कहता है कि शायर मे के खुदा से दरख्वास्त करता है ताकि नंगे दरख्त और जलावतन परिंदे अपने घोंसलों में वापस आए या क्या करें, यानी कि अपने जो है वो क्या बोलते हैं कि नंगे दरख्त, यानी कि ऐसे बोलता है कि शायर मे के खुदा से दरख्वास्त करता है ताकि नंगे दरख्त और जलावतन परिंदे अपने कदीम शान के साथ फिर से खुल जाएं। आगे बढ़ते हैं। यहां पे है रेफरेंस टू कंटेक्स्ट। कहता है कि इट लुक्स आउट डैश मून ऑफ प्रोटेस्ट, हु इज इट हुज येलो हार्ट डिड इट शेक। अब ये कहता है कि यहाँ पे इट कौन है और किसका जर्द दिल जो है वो हिलता है। ये कहता है इट स्टैंड्स फॉर ऑटम सीजन, ये ऑटम सीजन के लिए होता है। इट शोक्स आउट येलो हार्ट ऑफ द ट्रीज, ये जर्द जो दिल होता है दरख्त का उसके लिए ये हिलता है। बाय मेकिंग द लीव्स फॉल ऑन द ग्राउंड, जब पत्ते जमीन पर गिरते हैं। दूसरा कहता है what happens to the leaves that are scattered on the ground, यानी कि उन पत्तों का क्या होता है जो जमीन पर गिरे हुए या बिखरे हुए पड़े होते हैं। The leaves that are scattered on the ground get trampled by the people, जो जमीन पर गिरे हुए पत्ते होते हैं वो लोगों से कुचले जाते हैं या लोग उन पे कुचलते हैं, चलते हैं। कुचलना का मतलब चलना। When will these withered trees bloom again? तो कहता है ये मुर्दे दरख्त कब जिंदा होंगे। These withered trees will again in spring season, ये स्प्रिंग सीजन में दोबारा से जिंदा होंगे। ये मुर्दे हुए जो दरख्त हैं वो जिंदा होंगे कब? स्प्रिंग सीजन। नंबर 2, give some trees dash let birds sing। यहाँ पे क्या बोलता है? What is the gift of green? Who will receive it? Gift of green क्या है और कौन इसको लेगा? The gift of green refers to the green leaves. Gift of green का मतलब होता है कि सब्ज पत्ते। The tree will receive it, और कौन receive करेगा? Tree. What is the poet asking for when he says let one bird sing? The poet is asking for the arrival of the spring so that the tree will be restored with the green leaves and the bird will resume their singing. अब यहाँ पे क्या बोलता है? कहता है कि पोइट क्या बोल रहा है कि जो है कब एक परिंदा जो है दोबारा से सिंग करेगा। तो यहाँ पे ये पूछ रहा होता है कि स्प्रिंग जब आएगा ट्रीज दोबारा से वापस अपनी शक्ल में आएंगे, उनके ग्रीन पत्ते होंगे और बर्ड दोबारा से जो है वो गाना स्टार्ट कर देंगे। हमारा लास्ट वाला है कि what happens to the birds in autumn। तो autumn में birds को क्या हुआ? आपने देखा कि वो exiled किए गए। तो bird have been exiled from their nests और वो जो है अपने ही घोंसलों से उनको